सो एक और प्रॉब्लम करते हैं and let's see whether we are able to do or not. ठीक है, now let's see this problem. It's about middle term splitting. Our question is x square plus x right minus 56. ऐसा एक प्रॉब्लम है, इसे हमें फैक्टराइज करना है. Whenever you will be factorizing with middle term splitting, आपका प्रॉब्लम रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में. The problem will be in this format: x square plus x minus 56. Right? Now what did I tell you? सबसे पहले क्या करना है? You will multiply the coefficient of this. Now the coefficient of x square is how much? 1. 1 will be multiplied with negative 56, not 56, negative 56. So 1 multiplied by, क्या हो गया? पानी पियोगे बेटा? 1 multiplied by negative 56 gives me how much? Negative 56. Negative 56 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढिए जिन्हें ऐड करने से, algebraic addition करने से ये होता है algebraic addition. So I think one factor should be 8 and what should be negative 7. 8 into negative 7 is how much? Negative 56. And 8 plus minus 7 is plus 1. Plus 1. So how do we do our next step? Our next step would be x square will be retained as x square. Middle term splitting, ये है हमारा middle term, इसको भी split करेंगे. कैसे स्प्लिट करेंगे? 8x minus 7x. देखो तो 8x minus 7x gives you, इधर देखो ना, पहले लिखते हो, तुम्हें आता है ये करना, पहले सीखो ना, इसीलिए तो वाहियात क्वेरीज लाते हो आप लोग. पहले सीखो ना, आपको नहीं आता है, आप क्यों लिख रहे हो? आप देखिए ना, 8x माइनस, अगर आप ट्रिक नहीं समझेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे इस प्रॉब्लम को. 8x minus 7x is how much? X. And 8x into 7x. तब हम 8 into 7 देखते हैं. The factor 8 into 7 minus 7 gives me minus 56. So I retain negative 56 out here. Trinomial से quadrinomial बना. अब यहाँ पे we have to go by our method of commons. I've taken x common, x plus 8. And I told you दूसरे सेक्शन में x plus 8 आना ही पड़ेगा. अगर नहीं आ रहा है तो आप गलत हो. आप स्ट्रेट अवे इधर x plus 8 लिख दो. अभी आप सोचो यहां से क्या कॉमन लोगे. मुझे लगता है अगर -7 कॉमन ले लें, सो -7 into x is -7x, -7 into 8 is -56. समझ में आया? इसके बाद तो प्रॉब्लम आसान हो गया. दिस इज ऑल्सो डॉग एंड दिस इज ऑल्सो डॉग. तो डॉग को कॉमन ले लो, x plus 8, एंड देन यू आर लेफ्ट विद x फ्रॉम हियर एंड negative 7 फ्रॉम हियर. आपका फैक्टराइजेशन हो गया. Whenever you get such a problem, the first job you should do is try to look what is the leading coefficient 1. This and this gets multiplied. And then whatever product you get, you split it into two factors such that the factors can be positive, negative. You have to adjust it such that if you add them, then you should get the middle term. In my case, if I'm adding 8 and minus 7, I am getting positive 1, and the middle term is, the coefficient of middle term is positive 1. प्लस 7 होता तो 8 into plus 7 कितना हो जाएगा? प्लस 56. आपको तो नेगेटिव 56 लाना है ना. यहाँ पे अगर 56 होता मान लो, तो यहाँ पे x नहीं ला सकते हो, प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, उसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि 8 into 7 कितना होता है? 56. लेकिन 8 और 7 को जोड़ने से 15 हो जाता है. अगर यहाँ 56 होता तो यहाँ 15 रहता. मतलब आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है. अगर हमारा प्रॉब्लम ऐसा होता, देखो, आवर फ्रेंड इज आस्किंग, सर अगर यहाँ प्लस 56 होता तो यहाँ प्लस 15x होता. क्यों? अभी आप देखो, पॉजिटिव 56 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा? 7 और 8. 7 और 8 को जोड़ने से कितना आता है? 15. तो यहाँ पे कितना हो गया? x स्क्वायर. अब इसको स्प्लिट करो आप, 8x प्लस 7x प्लस 56. आप ये पूछ सकते हो, सर आपने 8x पहले लिखा, 7x बाद में लिखा, why like that? Your wish, you can swap it also, doesn't make a difference. ठीक है? So now I take x common, x plus 8. I should get x plus 8 out here, otherwise I am wrong. तो यहाँ पे सीधा लिख दो x plus 8, सीधा लिख दो, closing your eyes. What should you take common?
plus 7. 7, 8, 7x, 56. Dog, dog. So take dog as common. Now you get x plus 7. और अगर आप यहाँ 7 पहले लिखते तो भी एक ही बात होती. Have we understood? Right. Today we'll have not a very big class. We'll have a short class. So let's take. Who did not understand? I can explain it once again. Not an issue. एक और प्रॉब्लम करते हैं. आइए कुछ एक दो और प्रॉब्लम करते हैं and let's try and see. Okay. Anyways, it is getting recorded, so don't worry. So let me take one more problem, and my problem is, say, x square minus 7x plus 12. My problem is x square minus 7x plus 12. देखो x square minus 7x plus 12. ठीक है, this is my question. What is the leading coefficient यहाँ पे? 1. What is the constant? 12. What is the leading coefficient? 1. What is the constant? 12. देख ही नहीं रहे हो ना, नजर किताब में है 1. 1 and 12 they multiply. 12 means positive 12. It gives me 12. 12 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढिए जिन्हें जोड़ने से -7 आता है. -4 -3. Very good. -4 and -3. Because -4 and -3 if I multiply I get positive 12. -4 and -3 को ऐड करेंगे तो -7 आएगा. So what is my next step? X square -4x -3x. It doesn't matter whether you write this one first or that one. It's all same. Plus 12. Now you start taking common. X common लेंगे तो x minus 4. और यहाँ x minus 4 आना ही पड़ेगा. तो क्या कॉमन लेंगे? -3 कॉमन लेंगे. -3 लिया तो -3x and positive 12. Dog, dog. So x minus 4 is common. X minus 3. प्रॉब्लम हो गया. Can you now try problems from 7D? अब थोड़े से ऐसे प्रॉब्लम करते हैं, एक दो और एग्जांपल करते हैं. In these examples, now the examples will do, children, will have a leading coefficient. हर बार अभी कितना आ रहा था? 1 1 आ रहा था ना, इस बार 1 नहीं आएगा. And this is very important from grade 9 and 10 perspective. Very, very important. So let me take a problem. The problem is 2x square 9x 10. So देखो ये प्रॉब्लम देखो, 2x square plus 9x plus 10. इसको फैक्टराइज करना है. अब इसमें एक चेंज हो गया है कि अब तक आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता था, अब लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 2. तो अब 2 का मल्टीप्लाई 10 से होगा. 2 into 10 gives me how much? 20. 20 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालिए जिसमें कि हमें 9 मिले. 4 और 5. वेरी गुड. 5 4. 5 and 4. क्लियर? तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया? 2x square. लेकिन अब एक इश्यू है. अब इश्यू है, if you don't have a leading coefficient, then whether you put 4 पहले या 3 पहले कोई मतलब नहीं होता है. It's all same. But do we now have a leading coefficient? Yes, we have a leading coefficient 2. 2 का फैक्टराइजेशन 4 के साथ बेटर होगा rather than 5 से, क्योंकि 5 is a odd number, 2 is a even number. So as a safety, I will try to write it as 4x plus 5x plus 10. अब जरा देखो तो ये पोर्शन ही तो ये पोर्शन है, मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया, और 5x और 10 में फैक्टराइजेशन इजी होता है. ठीक है, अब फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं. Between 2 and 4, if I take 2x common out here, I get x plus 2. Do you agree? 2x into x is 2x square. 2x into 2 is 4x. Clear? और यहां x plus 2 आना ही पड़ेगा. तो यहां पे हम क्या कॉमन ले लें? 5 कॉमन ले लें. 5 into x is 5x. 5 into 2 10. Dog, dog. अब dog को कॉमन ले लो. यहां पे dog को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2x plus 5. कीजिए, खुद कीजिए. Try and do on your own. Try and do on your own. Till that time, I am writing one more question. 6x, 7x, 3 minus 3.
अच्छा, इसका क्या करेंगे आर्यश बोलिए? हर्षित, did you understand what will we do here? We will take 6 and minus 3 now. So if you multiply 6 and minus 3, what do you get? Minus 18. Think of two factors of minus 18 which will give you 7 upon addition. 9 and 2. 9 and 2 में 7 आ सकता है। हाँ, तो अभी हमको देखना है किसको माइनस लेंगे किसको प्लस लेंगे, because anyone you take minus you will get minus 18. That is not an issue, but this should come positive. So we will take 9 as positive and 2 as negative. Why did we do this? ये हमने क्यों किया? 9 into minus 2 gives me minus 18, but 9 minus 2 gives me a positive 7. अगर आप उल्टा करते तो ये negative 7 हो जाता। So अब चलते हैं इसको and let's split the middle term. 6x square, 9x minus 2x minus 3 is it? Oh, sorry. हाँ हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे? यहां से मुझे लगता है 3x कॉमन लिया जा सकता है दोनों से, राइट? 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x plus 3, और यहाँ 2x plus 3 होना ही पड़ेगा, -1 कॉमन ले लो। अब जरा देखो तो -2x -3, अब ये क्या है? डॉग डॉग, so just take dog as common and what are you left with? 3x minus 1. That's it. (15, 26, 8). नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आइए। 15, 26, 8, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, एक साथ करेंगे। 15x square, then we have -26x। ये बड़ा प्रॉब्लम है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हैंडल कर लेंगे हम लोग। 15, 26, 8। So what you have to do? First you have to multiply 15 and 8. बताओ 15 का टेबल कोई जानता है? 120। अब इतना आसान नहीं है क्योंकि आप फटाक से ये 36 नहीं बोल पाएंगे, 26 नहीं बोल पाएंगे, तो जरा इसके फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, 26 यानी कि 120 के फैक्टर कर लो, बड़े बड़े नंबर से भी आप कर सकते हो चाहो तो। सो कैसा रहेगा? सो से 12 इंटू 10, मतलब ये कितना हो गया? 5 और ये 2 है ना। सो बेसिकली 12, 5, 2। 12, 5, 2 में भी नहीं हो रहा है, देखो 12 और ये 10 है, 26 तो नहीं आ रहा है। 12 को भी स्प्लिट करो, 12 को स्प्लिट करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2। अब जरा सोचो, 3 and 5 makes it how much? 15 and 4 and 8 8। 15 को 8 के साथ जोड़ो, नहीं बन रहा है। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। 4 इंटू 5 20 आ गया। तो हमारा क्या होगा? 20 एक फैक्टर होगा and 6 एक फैक्टर होगा। आ गया, 26 आ रहा है, right? But we have to get -26, so the factor should be -6, -20। -6, -20 gives me 120। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करने से हो जाता है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। So our problem breaks down to 15x square, -20x, -6x plus 8। अब कॉमन लेना है, आ जाओ। 15 और 20 का HCF सोचो क्या होना चाहिए? 5 से ज्यादा कुछ कॉमन नहीं ले सकते, 5 लेकिन x कॉमन ले सकते हैं। सो टेक 5x कॉमन, यहाँ कितना रह जाएगा? 3x, यहाँ कितना रह जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ 3x - 4 आना ही पड़ेगा। क्या करें? -2 कॉमन ले लो, जरा देखो तो। -2 इंटू 3x इज -6x, -2 इंटू -4 इज +8। Now don't you see that this is dog, this is dog, so dog को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? frog -2। बस थोड़ा सा आइटरेशन करना पड़ता है, थोड़ा सा करते ही आपको मिल जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक, मजा आया? इंटरेस्टिंग है। आइए एक और देखते हैं।
ये जिसका हाथ सही है ना उसको 9 वाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 10 इसमें हाथ एकदम करेक्ट होना चाहिए। 3 minus 4 4. So our next problem is 3x square minus 4x minus 4. 3 चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। What will be multiply 3 and negative 4 कितना आएगा? negative 12. negative 12 ओके हमारा आंसर आया negative 12। ऐसे दो फैक्टर सोचिए जिससे कि negative 4 पैदा हो। 6 and 2 से 4 आ सकता है, लेकिन इस बार क्या करेंगे 6 और 2 में इसको माइनस लेंगे इसको प्लस लेंगे। -6 + 2 is -4 and -6 into +2 -12। मजा आ गया। ये स्टेप हो गया तो फिर जिंगा लाला 3x square -6x + 2x -4। अब 3x कॉमन ले लेंगे, x -2 यहां x -2 आना ही पड़ेगा, यानी कि यहां क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन ले लो। ये दोनों डॉग हैं तो ये डॉग हो गया और अंदर फ्रॉग हो गया। अंडरस्टैंडिंग बच्चा? राइट, विल हैव एन अर्ली ब्रेक 7:45 जैसे में ब्रेक कर लेंगे आज, ठीक है। आज मुझे भी थोड़ी जल्दी है तो शुरू करें। 70 नहीं, there is no class, okay, from tomorrow onwards. Today is the last class and again classes open from Monday, okay। एक मिनट, आपके जो डाउट्स हैं उन आप ये कर लो, फिर आपके डाउट्स देख लेते हैं। रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन काइंडली स्टार्ट विद 7D एंड यू कैन टेक द ऑड्स नाउ। इवेंट्स घर में कर लो या फिर जो जैसा चॉइस हो। इवेंट्स अभी कर लो, ऑड्स घर में कर लो। विल डू टिल 7:45, ठीक है। जेंटलमैन प्रॉमिस। आपका हो गया ये बोर्ड के प्रॉब्लम्स? हाँ, आपके क्या क्या डाउट्स हैं बोलिए। बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो। x to the power 2 minus y to the power 2। हाँ, ये पूरा नंबर ब्रैकेट में है। माइनस ब्रैकेट ओपन, हाँ 2y minus 1 x square minus y square और यहाँ पे क्या है 2y minus 1। ये कौन सा प्रॉब्लम है बेटा? 7b। क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए। ओके 1 मिनट। ब्रैकेट कहाँ है? ब्रैकेट तो है ही नहीं। ब्रैकेट कहाँ है? तुम्हारे डालने से तो नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें विश्वास ही नहीं करता हूँ। मैं क्वेश्चन देखता हूँ। x square minus y square minus 1, ठीक है। ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे? बोलो। कैसे करोगे? एक तो ये दो हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं x square minus 1 कर लो, माइनस यहां पे हम क्या करते हैं y को कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा y minus 2 मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं जाएगा। हाँ, ये कैसे जाएगा? देखो ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आ जाओ करते हैं इसको। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह है। एक्स स्क्वायर माइनस यहां कॉमन लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ये चीज समझ में आया? ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये पूरा चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 1 और यहाँ हो गया x माइनस वाई माइनस। समझे? चलिए बताइए और क्या डाउट है? 24 24th में बताओ क्या है? ये भी तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। 24th आप खुद कोशिश करो ना, क्वेश्चन बताओ। 25 a square 25a स्क्वायर minus माइनस 4b square 4b स्क्वायर, plus हाँ 28 bc हाँ minus 49 c square. हाँ, आपको प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। दिस इज 5a स्क्वायर, दिस इज 7c स्क्वायर, दिस इज 2 into 5 into 7। फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी ये नहीं, 5a स्क्वायर को अलग रखो। 4b स्क्वायर इज 2b स्क्वायर 7 स्क्वायर, 2 2 4, 4 7 28। इसको कैसे करेंगे हम? इसको आप लिख लो 5a होल स्क्वायर, इस माइनस को कॉमन लो, ठीक है? माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे क्या हो जाता है? तुमने क्वेश्चन कुछ गलत पढ़ा होगा, बोला ना, यू कैन नॉट रीड अ क्वेश्चन करेक्टली। क्वेश्चन तो करेक्ट पढ़ो बेटा। आप कहाँ बोला था? आपने जो बोला मैंने वही लिखा। क्यों आपके हर बोलने पे मुझे देखना पड़ता है बुक? माइनस को प्लस बोला था आपने, आप चेक करो। अभी भी आपको डिफरेंस समझ में नहीं आता है। हाय रे, तो ये कितना हो गया? 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर, 5a होल स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है आपको? 2b होल स्क्वायर 7c होल स्क्वायर 2 इंटू 2b इंटू 7c। देखो तो, हाँ नहीं, आप सोचते ही नहीं हो ना, आप लोग को लगता है एवरीथिंग शुड बी लाइक अ केक वॉक फॉर्मूला। ऐसे मैथ्स नहीं होता है। ऐसे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन योर एक्सपेक्टेशन इज रॉन्ग। 2b प्लस 7c होल स्क्वायर, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर इसको पूरा सॉल्व करें तो ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वो प्रॉब्लम करने के बाद ये खुद ट्राई करना चाहिए, तभी ना एक स्टेप आगे आदमी जाएगा। ठीक है? 7d, ट्राई दी ऑड्स फर्स्ट, ऑड्स और इवन वट एवर यू वांट। सीखो, फैक्टर लेना सीखो।
फंस गया। ऐसे मतलब स्प्लिट करने को कहाँ पे कौन से प्रॉब्लम में स्प्लिट करने में प्रॉब्लम हो रहा है बताओ। 11th वाले 11 तक हो गया, बाकी 23 लाना है, 23 लाना है 11th वाला ना। 42 को स्प्लिट करके 23 लाना है। 42 के फैक्टर्स क्या क्या है जरा सोचो तो। 42 के फैक्टर्स क्या क्या है, 6 7 जा 42, लेकिन 6 और 7 से 23 तो नहीं बन सकता है, राइट। और सोचो 42 के क्या फैक्टर्स है। 14 टाइम्स 3, 14 इंटू 3, पर उससे नहीं, 14 को तोड़ो, 7 2 जा 14, 7 7 2 और 3, तो 7 3 जा 21 और 2 बन जाता है ना 23, करेक्ट। आप सोचते नहीं हो। हाँ तो सोचो ना, सोचते क्यों नहीं हो आप। 14 से कर रहे हो, 21 इंटू 2 भी तो 42 होता है ना, है कि नहीं। और जो इसको प्रॉब्लम है वही इसको भी प्रॉब्लम है। अभी समझ में आया। 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 42, एंड 21 को 2 के साथ जोड़े तो 23 आएगा, लेकिन नेगेटिव लाना है देखो, यानी कि इट शुड बी -21 -2 should be your factors. Negative negative multiplied will give me positive. थोड़ा सोचो, आरिश हो रहा है ना, बढ़िया। क्या हो गया, कहाँ फंसे हो, कौन से में फंसे हो। नाइन्थ में, नाइन्थ में 16 लाना है और उधर 6 है, क्या होगा 8 और 2। कौन सा, किसमें फंसे हो। 11 तो अभी अभी बात किया इसके साथ, कान कहाँ था तुम्हारा। हाँ तो क्यों क्यों 11 नहीं हो रहा है। तुम लोग कमजोर हो, खाली ना सोचते हो कोई बता देगा, कोई नहीं बताएगा, खुद करो।
कौन सा फंसे हो बोलो। वो वाला हो गया। सोचने से सब आंसर होगा, सोचते ही नहीं हो। कौन सा नंबर 13? तुम तो 11 के बाद 13, सब में ही प्रॉब्लम है इसका मतलब। हाँ करो, 90 लाना है। मिल गया, बहुत बढ़िया। क्या है 90 लाने के फैक्टर्स? 15 और 6, बिल्कुल। 15 6 are 90, 15 और 6 है 21। वेरी गुड, ये तो आ गया, सीख गया। हरीश कहाँ चले गए? 34, वेरी गुड। किसमें अटके हो? 17 में। 17 क्या है? 104 लाना है, 5। 104 के स्प्लिट करो। 2 2 2 इतना करने से खो जाओगे, बड़े बड़े नंबर से पहले करो। 104 लाने के लिए हमें कितना चाहिए? 52 इंटू 2। 52 कितना से आता है? 26 से आता है। 26 कैसे आता है? 13, प्राइम नंबर आ गया। तो इधर 13 है, उधर 2 2 और 2। जरा कोशिश करो तो देखो। 13 इंटू 2 इज 26। 26 इंटू 2 इज 52। 52 इंटू 2, तो कितने 2 हुए? 2 2 8। 8 और 13 के बीच में कितना होता है? 5 आ सकता है ना? 8 और 13 से 5 आ सकता है भाई। 8 13 minus 8 is 5. 13 multiplied by 8 is how much? 104. 13 and 8 are the factors. अब प्लस माइनस आप खुद हिसाब कर लीजिए। आपको नेगेटिव 104 चाहिए, तो योर 8 शुड बी नेगेटिव एंड 13 शुड बी पॉजिटिव, और इन दोनों को ऐड करने से आपको पॉजिटिव 5 मिलता है।
हाँ हाँ ठीक है तो है ना, तुम लिखो ना बाबा, -104 लिखो, लिखते ही नहीं हो तो कैसे समझ में, -104 लिखो। अरे ठीक है। वहां क्यों फैक्टर कर रहे हो, -104 को सेपरेट लिखो, मैं वहीं पे फैक्टर करता हूं क्या, -104 को सेपरेट लिखो। अब इसका फैक्टर लो, +13 और -8 हो गया। तुम क्वेश्चन में ही फैक्टर बनाते हो, मैंने किसी क्वेश्चन में भी वैसे बनाया, चेक करो। फिर क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाँ तो फैक्टर में सिर्फ वो टर्म को लिखना पड़ता है ना, बना कि नहीं, हाँ भैया। तो कर लो। इट्स ऑल अबाउट हंटिंग द राइट फैक्टर। करो करो, घड़ी मत देखो, करो, वो मेरा कुछ नहीं है इसमें करने का, आपको ही करना है। भाई साहब हो रहा है कि नहीं, हाँ सर। निकालिए अगला वाला। कितना तक गया आर्यश, 36 तक चला गया है देखो, ठीक है, इस प्रॉब्लम के बाद आज रख लेंगे।
and then we will do. निकला? हाँ सर उसको भी पता है। कौन सा ऊपर वाला? सब तो मैं ही बता रहा हूँ। सर 19 वाला 19th वाला? What is 19th? Z square plus 19z। तुम तो z नहीं बोलोगे, तुम मॉडर्न हो, तुम बोलोगे z square plus 19z is 150। 150 कैसे आएगा? 15 to 5 15 को split कर देंगे 15, 2 and 5। 15 को split 15 को स्प्लिट कीजिए 5 into 3। हाँ, तो फिर जाके 6 and 25 gives you 19। फैंटास्टिक, हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है ना, घर में जाके और प्रैक्टिस नहीं करोगे। अभी अगर घर में इसको कर लोगे तो आराम से हो जाता है, लेकिन घर में जाके सोएंगे। Oh, Ritisha madam, I didn't see. Mama is sitting beside, huh? Hey, hiding your face does not mean that I am not able to see you. You're behaving like a crow. Crow closes his or her eyes thinking that the world does not see the crow. Are you able to do or not, Ritisha ma'am? I can do, sir. It's a sad day. What to do? Till now, you were smiling very nicely. I was observing. And the moment I call you out, that moment she will become sad. हुआ भाई साहब? Today we'll close a little bit early. Yeah, tell me. सर नहीं हाँ, इसका आप कौन से नंबर में हो? 21st हुआ कि नहीं? शुरू क्या किया? 91 लाना है, 6 आना है। किससे आएगा? 13 और 7। 13 and 7 gives you a 6, and 13 and 7 multiplied will give you a 91 also. Righto? तो आज यहाँ क्लोज करते हैं।